this, Right. and no, I want to. So those things I am withdrawing myself slowly. And even if I am doing, I'm looking for a cause. I'm looking for that. It has to be evolving me to a higher cause, apart from, money generation or whatever. What So are you attracted to right now in your life in terms of like goals? I'm involved, or I should be saying that I like to spend in dhyana. I want to sit down and do a lot of meditation. I'm presently doing for 2 hours or 2 to 3 hours. I'm trying to do in a day Do you work activities and all that. But the thing is, I'm more. I feel that this is the place, or this is the thing which I was waiting for, or this is the thing which I was missing earlier in my work, and I was not having peace then. But now I feel differently. Now I see things differently. Now I feel differently. So how should so my only question is it okay? Is it okay, like, if I slowly um, cut down on karma and concentrate more on dhyana, and because the people are also not able to guide me on that. Right. So just So, no, I got the question. So, no, the good thing is there's no obligations in terms of time or work that you have to commit to that is cutting back on your time that you can practice dhyana. And as long as you are enjoying, relishing, whatever the word is, you are focused and making progress and you're happy with it, there's no need, because there will be some degree of detachment. Like you will yes, feel yes, everybody, whatever they are talking, gossips, something about Bollywood or yes, cricket, you just feel like I yes, don't yes. connect with that kind of content. Earlier I was completely into all these things, but now I am Right. not. But the question is whether you have, like the new video that will come out in next week, you have to, I will borrow some ideas from that one because that's kind of fresh in my mind. There are 5 states of mind. Okay. There Yeah, is, I've gone through. Yesterday you have uploaded okay, them. it already got uploaded, didn't it? Yeah, I didn't even remember. So you have to see, like, pleasure is Yeah, desireless extrinsic, right? and So whether you're mm, eating a cookie or going and gossiping with 5 other women, and it's fun, but it doesn't last very long because of dopamine. The nature of dopamine is short acting. But GABA, if you look up like neurologically, neurotransmitter wise, GABA is what is released in the brain when you are peaceful and happy long mm, term. So that's why what we are essentially doing is changing the neurotransmitter that is creating us make feel good. yeah. So when you are doing dhyana, there is some studies that show that people will generate what we call gamma waves in deep dhyana, which is basically a kind of a wave that has higher amplitude than even delta waves, which happen in deep sleep. Personally, I believe we are feeling most refreshed and content when we wake up in the morning after a deep sleep. But Mm, it is claimed that if you go deep in dhyana, like some of these great guys go in samadhi, they are going in something called gamma waves that's even deeper. And this is mm, not like hocus pocus. This is something that has been studied in PubMed, and people have been hooked onto electrodes and see what brain waves they generate. Because I also happen to be a sleep physician, so I study people in sleep and what brain waves they mhm, generate and stuff like that. So there is a lot of evidence that mm, people, I mean, not me, or I mean, not most of us, but the great siddhas will be generating a different kind of waves. And that's why they love, like if you read Gospel of Ramakrishna, a lot of times you'll see Ramakrishna just go in samadhi and his body is limp and he just falls and his disciples are holding him because he's in a state of trance or whatever you want to call it. So mm, that is the beauty of deep dhyana. If you are able to go in a state where you can clear your thoughts, because the whole point of thoughts is to liquidate the subconscious samskaras, or I should say dhyana is to liquidate the subconscious samskaras by repeated questioning. As Chinmayananda says, contemplation liquidates vasanas. So the more you question, like, okay, why did I go there? Why did I waste 1 hour watching TV reality shows? Or why did I eat that extra meal when I was not hungry? So self-critique, mm. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, like बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए. Like Kabir says that always keep a critique, a person Mm. who will criticize you close to you. What better
criticizing person than your own thoughts in the realm of Yes. dhyana. So, so thoughts will slowly destroy the emotions, and emotions are what comes back to you. Thoughts are what you throw in the universe. So sankalp, what you think, I will do this. When Jim Carrey writes a check for himself that I will make $10 million when I am 10 years from now, and he talks about this on Oprah Winfrey show, he has made a sankalp or intention. I will do this. People make fun of him because he's an ordinary man. He's just a comedian. But look where he has come 10 years later. So there's a book called The Secrets. I'm sure a lot of guys, you must have read or heard about it. So it just talks about throwing positive vibes, affirmations in the universe, and that will rebound back to you as positive vibes that will help you get whatever you intend to get. But the question that matters for me is, what are you asking for? Be careful what you wish for. Are you asking for more money, fame, which will be left behind here, and probably your kids will enjoy more than you? So we have to be very careful with our wishes. And as long as the wishes are something that are instilling desireless state, peaceful state, then we are close to getting bliss. But I have similar experiences like 3-4 years ago when I started doing dhyana and chanting. I actually have problems if there's too many people around me. So that's a different thing. But you just love being with yourself. And that is a very hard thing to explain. Like most people say, oh, I'm lonely, I'm bored. Because when all that stuff goes, then you start loving being with yourself. And you would love being with like-minded people, but you would really feel terrible if you feel trapped, if you're in a gossip or something that you're not supposed to be in. I don't know. And as you were saying in one of the video, you have said, like, you know, throughout the day, the thought will be there, like a mother thinks about the child. Throughout the day, you know, Yes. I've just started since 3 to 4 months back onwards doing it. Initially, it was not so much for such a long time. So I'm seeing, like, you know, I'm just continuously, this is there in my sleep. Well, my intention of starting dhyana was to some extent to be little peaceful initially, but slowly I was like very keen, and there was a burning desire to connect to God, to have that connection. I want to establish that connection with God. I think because of that, I was so restless, you know, of late, I thought. And that was the initial. And 4 months, as I started going into deeper, spending more time into dhyana, um, I was like thinking, you know, like this connection, is it right? Or there's nobody to guide me actually. Only your videos I started watching and listening if I'm going on track. And is it like No, you're very kind. I mean, I'm sure there's better people who do a better job than I do, but this is what I have been doing. And all I know is that some people have problems getting into dhyana right away. They might do better with bhakti yoga, listening to chanting, Hanuman Chalisa, Mahamrityunjay mantra, whatever works for them. And then slowly work their way into nishkam karma. Like Krishna says, yagya dam tapo karna tyajamiti karmevyat. Even if you become sannyasi, never give up yagya dan and tap. Sacrifice, philanthropy, and austerity. Dhyana is kind of an austerity. You are depriving yourself of the sensory stimulus and just looking for happiness within. Because Shiv Chit is always looking for happiness by introspection. And Prakriti. Somewhere, Tapas, whenever, like, you know, we are connecting back to the world again and taking this mobiles and all these things, it's a kind of distraction. So I'm like, every time I'm just telling myself that I need to slowly cut down my interaction with the world. As you said, like for sense purification, that's very important. So but somewhere, you know, all these things, though I'm looking for all spiritual and good videos, and somewhere, you know, you're again getting back, so I'm pulling myself back. Right. So I don't think you try to pull yourself away from the world. That is the whole, it just automatically happens. You don't have to put effort in cutting yourself away from you just do dhyana and because dhyana will tell you, dhyana will grow the intellect or buddhi. When Krishna says Indriyani paranundam paramana manasastu para buddhi buddhi partastu sa, there's 4 levels: Indriya or senses, man or mind, intellect or buddhi, and sa or soul or atma, whatever. But buddhi is higher than man. Man creates desires and senses create pleasure. So both are short acting. So dhyana is growing your intellect.
about right versus wrong. That's why you do dhyan. So I won't say you have to cut yourself away. You have a duty or dharma as a mother and as a wife. So you have to fulfill those duties, because the hardest thing is to remain in grihast life and still practice yoga, bhakti yoga, karma yoga, dhyan yoga. And if you are able to establish that sat balance between responsibilities of a householder and seeker, you are serving both worlds. You are raising a kid that will hopefully help grow the society and community, you know. So that's a very being a sannyasi is selfish actually, because you are only concerned about your growth, but here you are trying to raise a family and have a kid that will probably get similar samskaras, because samskaras are effects of gunas. What you will do, that's what your kids do, especially at a young age. They watch you so closely. So I think you are doing the right thing. And when you go in dhyana, it will tell you that, no, I have certain duties. So I have to fulfill those duties, and then I do dhyana. So I think you are in the right path, and don't force yourself like, I have to cut away from the world. Let it be, let it flow. Thank you so much, Tapan. Yes, sir. To see the spiritual path according to his level, at which level he is standing or he is residing or living. Now, as far as my position is concerned, I am a married person. I am practicing in Supreme Court and Delhi High Court. Now, Karmane Vadhikaraste, I understand, I read and I listen to the great people like you that your right is on the karma and not on the result, फल. ठीक है सर, अधिकार तो हमारा फल पे तो है नहीं, हमारा अधिकार सर कर्मण्य अधिकार है. अब मेरा सर क्वेश्चन ये है कि हम जो मैरिड लोग होते हैं, लाइक आई एम ए लॉयर, आई एम प्रैक्टिसिंग. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट एवरी रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इन दिस लौकिक वर्ल्ड इज डिजायर. अब सर डिजायर में थोड़ा मैं रेंज जानना चाहता हूँ कि लाइक हमने लॉ स्टडी कर लिया या डॉक्टरी स्टडी कर ली, हम लोग कर रहे हैं वो, ठीक है. नाउ I have kids also, children whom I am raising or family. Now I want to practice the law or do my work, or I want to become a good lawyer or do something for my career. Now, whether that is a desire, and if yes, whether I can continue with that or not. Very good question. कि अगर हम लोग परस्यू कर रहे हैं अपनी जो भी डिजायर्स हैं, जो प्रोफेशनल हो या पर्सनल बच्चों को रेज करना हो, तो आर दोस डिजायर्स. तो उसमें सर एक से डिस्टर्ब करूंगा मैं आपको. जैसे उतना मैं समझता हूँ कि हमारा फल पे अधिकार नहीं है. आई एम यूजिंग द वर्ड अधिकार, आई एम नॉट आसक्त नहीं है, वो मैं अधिकार भी कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरा अधिकार नहीं है. दूसरा, मुझे निष्काम का भी मुझे पता है, लेकिन लेकिन वो जो हमारी रेंज है कि भाई ये मैं कर, लाइक सपोज मैंने देखा कि आपको एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए, उसके लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए. जैसे सपोज करो आपने सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने काम कर लिया, फिर आपका जो भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि, ददामी बुद्धि योगम जो आपने बोला है, आपको बुद्धि मिली और एंड यू कैन गो हायर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो. सो वेदर डूइंग द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट is a desire or doing good work is a desire, or doing higher level work or growing yourself is a desire or not, or it's a good desire or bad desire? So that's a good question. If the desire is propelled by competition, that I need to be better than my neighbor, मेरा neighbor अब district court से supreme court में चला गया, मेरे को भी जाना है अब तो then it is rajas mode ना. rajas जो passion fiery बोलते हैं. पर इफ इट इज मोर लाइक संकल्प, जैसे मैंने बोला ना कि रिगार्डलेस ऑफ आपके आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं, आपने बचपन से ही बनना था बेस्ट लॉयर इन द कंट्री. ये आपकी बचपन से ही मन में बना के रखा हुआ आपने. जो एक वो याद आ रहा है मुझे, एक सीक्वेंस जब अभी देख रहा था मैं, सिद्धू की एक कमेंट्री चल रही थी. इतना अच्छा बोलता है तेंदुलकर, और वो बैटिंग कर रहे थे. वकार ने उसको फर्स्ट जो सियालकोट में बॉलिंग करी, इतना छोटा सा था, 16 साल का लड़का, बाउंसर मारा तो उसके नाक पे जाके लगा, खून निकलने लगा. तो ये बोला कि 6 विकेट तो गिर गए ऐसे भी, अब तो यार ये इसको क्या करेगा, ये तो जाएगा रिटायर हर्ट, हम लोग घर जाए, शादी हुई है मेरी नहीं, बहुत अच्छी, उसको आप देखें, मैं खेलेगा करके एक वीडियो है उसकी, सिद्धू की, मैं खेलेगा. तो जब सिद्धू आया बोला कि यार चला जा तू, 16 साल का, चोट लग जाए, मर जाएगा, क्या मतलब. तो वो बोलता है मैं खेलेगा. तो ये क्या है, ये डिजायर नहीं है, ये हम लोग वर्ड्स का खेल है. अभी आप एक वीडियो देखेंगे सर, अभी अगले हफ्ते आएगा या 2 हफ्ते में, अभी एक नया वीडियो और डाला है मैंने. तो डिजायर
और संकल्प या इंटेंशन में अंतर समझना बहुत जरूरी है। इंटेंशन इज इंट्रिंसिक। जैसे 6 बजे जो बच्चा है अपने खेल रहा होता है टॉयज के साथ डे केयर में, सारे आपने उसको आइसक्रीम केक खिला दिया, 6 बजे उसको अपनी मम्मी के पास जाना है। चाहे आप जो Yes, कर yes. लो कि बेटा रुक जा, रात आज यहीं पे खेल ले, टीवी देख ले, गेम वीडियो गेम खिलाऊंगा तेरे को, वो तो भैया जो रोना स्टार्ट करेगा आपके कंट्रोल के बाहर कि भैया मुझे मम्मी के पास जाना है तो जाना है, रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार ये डिजायर नहीं है ना, ये तो उनका प्री प्रोग्राम ब्लूप्रिंट में इंटेंशन है कि भैया इस टाइम में तो यही होना चाहिए, 6 बजे तो मम्मी का टाइम है। तो ये आपने जब बचपन से सोच लिया कि मुझे तो बनना ही है बेस्ट, बेस्ट लॉयर बनना, नरेंद्र मोदी को बेस्ट पीएम बनना, तो ये तो यार इंटेंशन है ना। इंटेंशन में क्या बुरा है? आपने किसी से कंपटीशन नहीं की ना कि उसके वो जाएगा तो। जैसे कई लोगों की तकलीफ होती है कि इलॉन मस्क अभी देखो जैसे रिचेस्ट वर्ल्ड का पर्सन बन गया, जेफ बेजोस था पिछले हफ्ते तक, तो यार Yes, ये तो yes, बहुत yes. तकलीफ होगी यार कि हमसे Yes, कोई yes. आगे बढ़ गया आज। तो यार Yes, yes. ये दूसरे से कंपैरिजन किल्स द जॉयज इन लाइफ। यू कैन नॉट Yes, कंपेयर yes. डिजायर। इफ इट इज ट्रिगर्ड बाय कंपैरिजन then it has an element of rajas which Yes, will be yes. required to convert things, but it is located Yes, at yes. manipura, the third chakra hai na manipura ambition ka, Yes, that yes. is the highest purest level you can remain in this world and still attain all the things you have to attain. तो Yes, yes. धीरू भाई अंबानी हुए, नरेंद्र मोदी हुए, ये सारे मणिपुर वाले लोग हैं कि इनको कुछ करना है, Yes, yes. इनको फर्क नहीं पड़ता है कि दे आर नॉट टाइड बाय स्मॉल थिंग्स ना। जैसे कि खासकर जो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, आई मीन पीपल माइट नॉट हैव, बट नरेंद्र मोदी आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि देखो यार जिसका कोई आगे पीछे बच्चा ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, या रामदेव को लोग जो भी बोले, रामदेव बाबा को, जिसको है ही नहीं किसी, तो यार उसको क्या एंगल होगा कि बच्चे के लिए रख दें या बीवी के लिए रख दें। तो Yes, तो yes. आपकी क्वेश्चन का आंसर है कि व्हेन यू वांट टू वर्क एंड गो इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इंटेंशन और संकल्प। Yes, yes. Desire is bad when it is extrinsic and it is toward Yes, yes. महाभूत या ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, जो भूमि रापन वालों वायु खम, तो टेस्ट की चीज खानी, भैया एक को की खा लिए दूसरी एक खा लेते हैं। अब डायबिटीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ब्लड प्रेशर से परेशान है, खाए जा रहे हैं। तो ये डिजायर हुआ, कार्नल डिजायर जो बोलते हैं ना। वैसे ही Yes, yes. फिर जो मेन तो होती हैं स्वादिष्ठाना पे, फूड एंड सेक्स, दोज आर द टू मेन, क्रिएशन एंड प्रोक्रिएशन बोलते हैं। तो इसलिए चक्रा Yes, का yes. थोड़ा सीक्वेंस समझेंगे तो समझ में आएगा। जो एक रोटी खाई इसलिए ताकि जिंदा रह सकें, वो मूलाधार है, वो बेसिक नीड है, नहीं तो शरीर टूट जाएगा, ईगो नहीं मेंटेन कर पाएगा। लेकिन जब तीसरी चौथी पांचवी कुकी खाए जा रहे हैं अपन, और कोई जरूरत ही नहीं है, तब तकलीफ होती है, पेट दुखता है, फिर ब्लड शुगर स्पाइक कर गया, डायबिटीज, तो ये जो है ये डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, तो यही Yes, प्रमाद yes. तमस में चला जाता है ना। तो आपकी जो बात है, आई थिंक आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और समाज सेवा है ना अपने, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में Yes. चल जाके जो भी काम कर रहे हैं, अगर न्याय करा रहे हैं, आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं जो गरीब है, तो इससे अच्छी बात Yes, क्या हो yes. सकती है यार। आपको देख के फिर वो बोलते हैं ना, यदा चरति श्रेष्ठ से देवे तोरो जना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, जैसा जैसा श्रेष्ठ जन करेंगे बाकी लोग वैसा ही फॉलो करें। आप अच्छा करोगे, आप जब भले तो जग भला, आपको फॉलो करेंगे। 4 लड़के आपके जो नीचे हैं जूनियर लॉयर, वो बोलेंगे हमें भी इनके जैसा बनना है, ग्रीस जी जैसा हमें भी बनना है। तो ये आपने उनमें इंस्टिल कर दी इंस्पिरेशन, तो ये तो बहुत इसको जरूरी है, सर अच्छी चीज। इसको सर समराइज अगर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम तो देना कोई डिजायर नहीं है, आप में 100 में से 90 आए या 75 आए, वो आप उसमें आपका अधिकार नहीं, लेकिन आप एग्जाम दो और जम के दो, आप ये कह राइट, सकते हैं सर। आप अपना काम बेस्ट करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ें। और सच बात तो ये है यार कि आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कर्म बंधन ऐसी चीज होती है ना, वो जाके यस संचित सर। कर्म में बैठती है, तो आपको लाइफ में वो मिलेगा ही, आप नहीं भी चाहोगे तो मिलेगा। तो इसीलिए एक्सपेक्ट करने से थोड़ा आप उसको, यूनिवर्स को थोड़ा कंपेल कर देते हो ना कि मुझे चाहिए, तो सकाम कर्म हो जाता है, तो इसलिए वो कर्म बंधन बढ़ाता है। इसलिए जैसे बच्चे को भी रेज कर रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम द किड, आई विल जस्ट डू द बेस्ट आई कैन, आई एक्सेप्ट हिम, आई एक्सपेक्ट नथिंग ना। तो यस सर। ये बहुत जरूरी है कि ये नहीं कि भाई तुम्हें भी बनना है लॉयर, यार कैसे नहीं बनोगे तुम, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर बनना चाहिए, बैट्समैन नहीं बना बॉलर बन गया बेचारा, तो क्या करेंगे आप। बोले सर, हाँ बोले। एक से क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम के लिए, नॉट फॉर दिस टाइम, लाइक एक कोई भ्रम है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, वृंदावन हरिद्वार हर जगह जाते हैं, संत महात्मा सब लोग होते हैं, सब जगह होते हैं, सबकी कृपा है सर। आप सर साइंस और एक जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी कह लो, दोनों का फ्यूजन कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा धीरे धीरे करके जो है, उस पर जो है कि तो सो दैट लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं, जो केवल संत है या वही अच्छा काम कर सकता है, या गृहस्थ नहीं कर सकता, या साइंस वाले नहीं कर सकते, उसको थोड़ा क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। नहीं, अगर वो तो आप, आपकी बात सही है, आपके जो एक्सपीरियंस है सर, फील्ड, आपके एक्सपीरियंस है नेक्स्ट टाइम सर। हाँ नहीं, अभी जो और जिस लोग फील्ड लाइन में में लगे उसको हुए। बेस्ट बेस्ट काम करना है यार। मैं तो कोई संत वंत नहीं हूँ, मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूँ और
जैसे Yes, सब लोग sir. नॉर्मल इंसान हो यार, मेरे में कोई सिद्धि वैसी कोई No, स्पेशल no. थिंग नहीं है। I mean to say that गृहस्थ भी जो है अच्छा वैसा सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो डिल्यूजन जो है वो थोड़ा क्लियर हो जा रहा होना चाहिए धीरे बिल्कुल धीरे यार, करके। नीम करोली बाबा तो शादीशुदा थे, यस सर, यस सर, यस तो सर, बड़े बड़े सिद्ध हैं। लाहिरी महाशय शादीशुदा थे, बच्चे थे लाहिरी यस, महाशय के। तो यार यस सर, यस। एनलाइटनमेंट का क्या संबंध है? बुद्ध इवन 4:10 होने जा रहा है। सवेरे का? हाँ, सुबह क्या का। बात है यार, अब सवेरे 4 बजे उठ गए यार आपने, मुझे तो मतलब वो नहीं, मैं जगा ही हुआ था। आज वो एक्चुअल में सफला एकादशी होती है, तो उसमें कहा जाता है कि आप रात भर जग सकते हो, साल में पहली बार अच्छा पड़ती है। अच्छा, हाँ आप फास्टिंग करते हैं क्या एकादशी की? हाँ, मैं करता अच्छा, हूँ क्या फास्टिंग बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ना। तो सर, अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता हूँ। और जो है आपकी कुछ चीजें पढ़ी, शुरू से मेरा थोड़ा सा वैसा इंटरेस्ट रहा था। तो जो आपकी मैंने देखा कि आप जो चंद्र नाड़ी और ईडा पिंगला और सुषुम्ना की बात करते हैं। सो एक क्वेश्चन है मेरा, फोकस के तरफ है कि जो हम अगर हम कोई लाइफ में कोई भी चीज पाना चाहते हैं, तो हमको फोकस एक्सट्रीम या हाई हमको चाहिए होगा, ताकि हमारी जो थॉट की रैंडमनेस है वो कम रहे। उसमें मुझे एक डाउट ये होता है कि जब हम ग्रे मैटर की बात करते हैं, माइंड के अंदर सेलिब्रम पे जाते हैं, और जब हम आप बात करते हैं जब डिफरेंट चक्रा की, तो क्या ये चक्रा और जो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर या डोपामीन, सेरोटोनिन की जब हम बात करते हैं, तो न्यूरोटॉक्सिन और चक्रा ये अलग अलग फिनोमिना है, और ये फोकस में सर किस तरह? राइट, तो यार विवेक, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट पैथ्स हैं। चक्रा, नाड़ी, ये आप बॉडी में डाइसेक्ट करके नहीं देख सकते। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजैक्शन करोगे तो भी देखेगा, ब्रेन में भी व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर दिखेंगे। लेकिन ये जो हमारे आयुर्वेद का सिस्टम है और जो उपनिषद का सिस्टम है, इसमें जो इनका अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है। चाहे वात पित्त कफ की बात करें या नाड़ी सिस्टम की बात करें, ईडा पिंगला सुषुम्ना की, ये सारी चीजें इनविजिबल हैं। ये आप कहीं स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, कोई ब्लड टेस्ट करके बता नहीं सकते कि हाँ इनका तो वात बढ़ा हुआ है जी। जैसे डिप्रेशन है यार, डिप्रेशन को आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं है कि भाई ये देख लिया हाँ भाई डिप्रेशन लेवल बढ़ा हुआ है इनका। ये डिप्रेस तो डिप्रेस है आदमी यार, दुखी तो सुसाइड कर लेता है आदमी डिप्रेशन। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई नहीं दे वो होती नहीं है। जैसे कि जो चीज आपको याद नहीं हुई, वो घटना घटी ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पुनर्जन्म की कोई आपको याद नहीं चीज है। लेकिन एक बच्चा 2 साल का है, उसको तो कुछ याद नहीं कि मम्मी पापा ने कहाँ ले गए थे, कहाँ घुमाया था, लेकिन वो घटनाएं तो घटी हैं। जस्ट बिकॉज वी डोंट रिमेम्बर डजंट मीन इट डिड नॉट हैपन ना। तो इसीलिए जैसे इफ यू कैन नॉट सी डजंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो नाड़ियों की जो सिस्टम है, ये वही बात हो जाती है कि पहले एविडेंस दो फिर आएंगे, या फिर श्रद्धा पहले लाओ तो फिर दिखाएंगे। बैंक टेलर बोलता नहीं है कि पहले पैसा दो, और ये कस्टमर बोला पहले रसीद दो फिर दिखाएंगे तुम। तो ये पहले आप वाली में पर ये सिस्टम डिस्टिंक्ट है। हमें मेडिसिन में कभी नहीं सिखाया इन्होंने चक्रा क्या होता है भाई, नाड़ी क्या होती है। तो सर, अगर हम फोकस करने की बात करते हैं, तो अगर मतलब इससे चक्रा से, या मैं जैसे करता हूं कभी कभी कि आप कहते हैं सूर्य भेदी करो या चंद्र भेदी करो, तो इससे ग्रे मैटर पे या फास्टिंग से, इन चीजों से ग्रे मैटर पे तो इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ग्रे मैटर हमारा बढ़ता है तो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, एज कम्पेयर टू अगर व्हाइट मैटर बढ़ जाए, उस पे बंदों की रेजिंग थॉट्स क्रिएट होने लगती है। राइट, तो आप जो बात कर रहे हैं वो बात आप कर रहे हैं फोरब्रेन और नियोकॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। पेलियोकॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स जो टर्म्स हैं, जो कॉन्शियस फ्रंटल लोब जो है ना, वो कॉन्शियसनेस जो आती है, जो आप बात कर रहे हैं ग्रे मैटर की, वो बताते हैं वो नियोकॉर्टेक्स से आती है। दैट इज द न्यू ब्रेन दैट हैज इवॉल्व्ड इन होमो सेपियंस एज वी आर कमिंग इन न्यू सेंचुरीज। दैट इज वेयर कॉन्शियसनेस लाइज। Primitive brain, जो hippocampus है, urge of sex and rage, all the behaviors that are reflex, those things just happen. आपको किसी ने गुस्सा मारा, आपने गुस्सा है, आपने मार दिया वापस। तो ये तो सोचा नहीं ना यार, कैलकुलेट कहाँ किया इसमें। तो रिफ्लेक्सिव जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन, एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो सारे होते हैं, क्योंकि मूलाधार से राइज किया है, वो सारे बेसिकली जितने लोअर चक्र पे अपन फंसे हुए हैं, उतना हमारा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। गुस्सा आ जाता है, नियंत्रण नहीं है, क्रोध हो जाता है, काम क्रोध लोभ जो बोलते हैं ना, लस्ट एंगर ग्रीड, 3 डोर्स। तो वो सारी लोअर चक्रस पे हैं। पर
जो ग्रे मैटर ग्रो करने की बात है, आई डोंट नो इफ दे हैव स्टडीड कि इसका ग्रे मैटर बढ़ जाता है वॉल्यूम, मे बी देयर इज, आई डोंट नो। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, कि जितना आप अपने को ऑस्टियरिटी में डालेंगे, प्रत्याहार के जो यज्ञ दान तप का तप जो है, कृष्ण जो बोलते हैं यज्ञ दान तपो कर्म न त्याजे मिति, कभी भी त्याग नहीं करो यज्ञ दान तप का, संन्यास लेने के बाद भी। तो जितना प्रत्याहार करेंगे, जो 5 तरीके बताए मैंने प्रत्याहार के, भूमि रापन वालो वायु खम, 5 महाभूत के लिए एक एक चीज बताई है। एक बार और कर देता हूँ ताकि लोगों को पता हो। भूमि मतलब अर्थ है, तो अर्थ मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1 मील अ डे कर लें, 2 मील अ डे कर लें, लेकिन दिन भर थोड़ा थोड़ा नहीं खाते रहे, ये हो गई फास्टिंग। BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर भागता है दिमाग में, इसीलिए सॉक्रेटिस आप सुनेंगे, ये सारे जो पुराने रोमन ग्रीक फिलोसफर हैं वो कहते हैं आई फास्ट फॉर बेटर मेंटल एक्यूटी। हिपोक्रेटिस की नियम थी कि सारे अपने स्टूडेंट्स को बोलता था तुम फास्ट करके मेरे क्लास में आओगे, ताकि आप उनको ज्यादा ग्रास्प करेंगे ना। जब लायन भूखा होता है तब उसमें ज्यादा ड्राइव, कंसंट्रेशन ज्यादा आती है, तो इसीलिए इंटेंशन या संकल्प की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बढ़ जाती है जब आप अपने को थोड़ा डिनाई करते हैं, एक्सट्रिंसिक गुणा का गुणेशु का, इंद्रिया का इंद्रियार्थेशु से कांटेक्ट ना करवाए ना, जो वो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते या शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायोनि नित्यांश इच्छा सुभारता। हे अर्जुन, ये कांटेक्ट, इंद्रियों का इंद्रियार्थेशु से कांटेक्ट, जीव का कुकी से कांटेक्ट, त्वचा का टच से कांटेक्ट, यही कारण है आपको प्लेजर और प्रमाद देने का, जिससे आपका कम हो जाएगा, आपका ड्राइव कम हो जाएगा ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज फॉर अर्थ। वाटर के लिए अल्कलाइन वाटर इन ब्रह्म मुहूर्त पी लें, जो मिंट होता है, क्यूकम्बर स्लाइसेस डाल के स्टीप कर लें रात भर उसको तांबे के पानी में, फिर उसको पी लें। गर्म पानी पिया करें कोविड में खासकर, क्योंकि गर्म में वायरस अच्छा सर्वाइव नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म रेवअप होता है। फिर तीसरा हुआ एयर के लिए करते हैं कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम की विधि आप देख लें, वो बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें 1422 का सीक्वेंस है, उसमें करेंगे तो चले वात्ते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, जैसे जैसे वात चल रहा है वैसे वैसे चित्त चल रहा है, इनका ये हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं। तो इसीलिए आपको जब आप ब्रेथ होल्ड कर, जब भी परेशान होते हो ना अपनी हरकतों से, कुंभक सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, इंस्टेंटेनियस हेल्प अगर आपको चाहिए ना। मैंने तो उसको बहुत अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कोल्ड वाटर शावर भी करा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करा है, लेकिन कुंभक जैसी ताकत, आई एम सो सरप्राइज्ड। पिछली बार भी अमरदीप याद होगा हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कुंभक इज अंडररेटेड। प्राणायामों में सबसे जो इफेक्टिव है ना, और कभी भी कर सकते हैं आप, अपना AI का काम कर रहे हैं, बस सांस लें, रोक लें, फिर लेट इट गो। और वो कुंभक क्रिया की मैंने एक बताई वीडियो बनाई जिसमें 3 चीजें कंबाइन करती हैं, ध्यान आसन, कुंभक और योनि मुद्रा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यू आर चैनलिंग द प्राणा ऑफ द यूनिवर्स इनटू योर बॉडी ना, तो उससे आपकी फोकस अटेंशन बढ़ेगी। चौथी फायर हो गई। फायर में मतलब निष्काम कर्म, जो पैशन के काम करते हैं, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, यज्ञ दान तप, ये सारे फायर हैं। और लास्ट है ईथर। ईथर मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, वैक्यूम ना। तो ध्यान जो ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, खासकर बोलते हैं एकादशी फास्टिंग में जो भी काम करोगे ना, वो मल्टीप्लाई कर जाता है उसका, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा, आपको शॉर्टकट आपने ले लिया है, बाईपास रूट ले लिया, तो इससे बहुत फायदा होता है। लेकिन ध्यान सबके बस की नहीं है, ध्यान करने में बहुत बुद्ध जैसे बैठ के एक जगह बहुत लोग नहीं करेंगे, बहुत दिमाग भागेगा इधर उधर। इसलिए कुंभक के साथ करें ध्यान, यानी कि सांस पे थोड़ा ध्यान दें, स्लो ब्रीदिंग इन, रिटेंशन, स्लो ब्रीदिंग आउट, होल्ड एंड देन। तो ये चारों को, ये 5 प्रक्रियाओं को करेंगे तो प्रत्याहार कहलाई, ये कहलाई भूमि रापो नलो वायु खम, 5 एलिमेंट, पंच महाभूत का प्रत्याहार है। जितना करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अटेंशन, फोकस बढ़ेगा। ईडा पिंगला में, ईडा जो आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है मैक्सिमम लोगों का आज के देश में, ईडा ज्यादा एक्टिव है मैक्सिमम लोगों का, तो हाइपर एक्टिविटी होती है, इम्पल्सिविटी देखेंगे आप। हैं जो ओल्ड एज हैं, या मैं आजकल की जनरेशन में देखता हूँ कई बार जो छोटे बच्चे भी हैं, बीच में मैं पढ़ाता भी था, तो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर एक तो कोई एम नहीं मिलता है कुछ बच्चों को, और कुछ लोगों के अंदर देखता हूँ कि जो ओल्ड एज लोग हो रहे हैं उनके अंदर हाइपर टेंशन या चीजों को लेकर के वो इतना परेशान है और उस परेशानी में डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या थोड़ा सा आप कुछ सजेस्ट करिएगा बच्चे और बुजुर्गों के लिए? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आगे नहीं पूछूंगा यार सर। वो दोनों बात की समस्या, बच्चों में भी जो हाइपर एक्टिविटी जो अमरदीप बोल रहे थे ना, वो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से सोचोगे, अंग्रेजी में तो ADHD बोल के उसको मेथाम्फेटामिन, आई एम सॉरी एम्फेटामिन, जो सारे रिटिलिन, एडोरॉल, कंसर्टा, ये सारे मेडिसिन देते हैं जो कि एम्फेटामिन है। एक्चुअली एम्फेटामिन इज अ ड्रग इफ यू थिंक अबाउट इट। तो ये बच्चों का एलोपैथी में इलाज बिल्कुल डिफरेंट है।
जो आप एंजाइटी की जो दवाइयाँ होती हैं, सारे SSRIs और नॉरएपिरी अपटेक इनहिबिटर, एमिट्रिप्टिलिन, तो ये सारी चीजें, मैं तो आई एम एलोपैथ फिजिशियन बाय प्रैक्टिस, बट आई नो दैट इट्स गोइंग टू जस्ट कवर अप द प्रॉब्लम। अगर आप में थोड़ा पेशेंस है और परसेवरेंस है, तो बोथ द किड्स एंड द ओल्डर पीपल, जो भी हाइपर एक्टिव जहां देख रहे हो ना, समझ जाओ कि उसका ईडा ओवर एक्टिव है, उसका वात ओवर एक्टिव है। तो फिर आप वापस जाके देख लें वो ईडा पिंगला सुषुम्ना में क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, अगर आपका ईडा बढ़ा हुआ है। और डायग्नोज जो दोषा वाले लेक्चर में देख लें क्या करें अगर वात बढ़ा हुआ है। तो दोनों की समस्या एक ही, और हम सबको होना है वात। वात इज डीजेनरेशन, पित्त इज प्रो इन्फ्लेमेशन, एंड कफा इज एक्यूमुलेशन। तो ये 3 प्रकार के ही डिजीजेस होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। और ईडा पिंगला का वही फंडा है कि ईडा अगर ज्यादा एक्टिव है तो फिर एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो फिर सुषुम्ना में कभी घुस ही नहीं पाएंगे अपन, हमेशा ईडा पिंगला को ही बैलेंस करते रह जाएंगे इस लाइफ में। तो इसीलिए बच्चे, अब मुश्किल है बच्चों को कुछ भी कराना, लेकिन योग कराएं जितना भी करा सके। भक्ति योग है तो हनुमान चालीसा ही चला दें, आप बस चला के छोड़ दें। आप सुनते हैं बच्चा खुद ही करने, बच्चा तो कॉपी पेस्ट मारता है ना यार, जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चा करेगा। आप बैठ जाएंगे ध्यान करने, वो भी बेचारा बैठ जाएगा, छोटा सा बच्चा, उसको समझ में नहीं आया कुछ क्या कर रहा हूँ, लेकिन पापा जी कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो बच्चों में इंस्टिल करना संस्कारा इज ऑल अबाउट डू एज आई से नॉट एज आई डू। ये वाला थ्योरी नहीं चलता ना कि बेटा मैं जो बोलूंगा वही करो, जो पापा जी करेंगे वही भी मैं करूंगा। तो इसीलिए अगर आप खुद करेंगे भक्ति योग, आप थोड़ा फिलैंथ्रोपी सोसाइटी कम्युनिटी में चैरिटी कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं सवेरे उठ के, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो अराउंड है ना, वो लोग भी चेंज हो जाते हैं, वो आपके साथ वाले फैमिली वाले वो भी थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो कृष्ण कहते हैं ना, यदा आचरति श्रेष्ठ से देवे तो रजना स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। जैसे जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा वैसा ही सब लोग आपके पीछे पीछे करेंगे। तो आपको उसका करवाना है, और कभी लड़ना नहीं है लोगों से कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये भी गीता में एक अलग लेसन है। न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञानम कर्म संज्ञानम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान समाचार। विद्वान आदमी कभी बुद्धि भेद डिस्कोर्स में नहीं लगेगा कि भाई तू गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, मैं तेरे से सहमत। वो अपना आचरण से उसके सामने करेगा। जैसे बच्चे को आपने अगर इरिटेट करना है ना, बेस्ट तरीका है बच्चे के सामने आप हनुमान चालीसा चला दो या ध्यान करने लगो। बच्चा थोड़ा इरिटेट, ये क्या कर रहे हैं पापा जी, समझ नहीं आ रहा, फिर वो थोड़ा क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन फिर वो आपको कॉपी करने लगेगा। तो बच्चों को वात में कम करने के लिए वो वीडियो देख लें, क्या खाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, खाने पीने के लिए तो वात हो जाएगा। और ईडा पिंगला वाले में वो देख लें कि कैसे आपको अपना सूर्य बढ़ाना है, सूर्य भेदी करके। और योनि मुद्रा में भी एक होती है, एक स्पेशल काइंड की योनि मुद्रा है जिसमें आपकी बैलेंस होती है, सर्व योनि मुद्रा शायद नाम है उसका। तो वो सब देख लें, तो कुंभक क्रिया वाले में है। लेकिन इन शॉर्ट योग इज द आंसर एंड प्रत्याहार। अगर 2 शब्द आपको इस लेक्चर से ले जाने हैं तो ले जाइए योग, प्रत्याहार। योग मतलब भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। प्रत्याहार मतलब वो 5 तरीके जो मैंने बताया। और सर फोकस के लिए ऐसे पढ़ाई करता हूँ या काम करता हूँ सुबह उठ करके, तो आपने जो 3 प्रक्रिया बोली है कि कुंभक करके और साथ में पढ़ाई करूँ ताकि डाइवर्जन ऑफ ब्रेन को रोक सकूं। राइट। माइंड स्कैटर ब्रेन नहीं होगा ना यार, जो माइंड रेस करता है ना, इधर उधर जा रहा है कि अरे यार बिल पे करना है, यहाँ पे जाना है, इनसे मिलना है, रात को बहुत मजा है। ये जो माइंड आपका मंकी माइंड है, मंकी माइंड इज नॉट अ वेरी गुड मल्टीटास्कर। तो उसको आपने कुंभक करा दिया तो सांस में फंस जाता है। जैसे ये आप फर्ज करो कि आप डूब रहे हो पानी में। अगर आप पानी में डूब रहे हो और आपको सांस लेने नहीं बन रहा है, आपके मन में आएगा क्या कि थोड़ा स्मोक कर लें, थोड़ा ड्रिंक कर लें, या थोड़ा यार एक क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर देख लें? कभी नहीं आएगा। चीजें मूलाधार पे आ जाती कि भाई निकल इसमें से, कैसे भी निकलना है। एक पॉइंटेड माइंड है कि मेरे को इसमें से निकालना है, पंचमहाभूत। तो इसीलिए एडवर्सिटी, कोल्ड वाटर शावर करते हो ना, तो क्यों ऐसे माइंड बिल्कुल आपका अलर्ट हो जाता है अचानक से? क्योंकि आपने सडन एडवर्सिटी, स्ट्रेस डाला है आपने। और छोटा छोटा स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर द बॉडी। सडन बिग स्ट्रेस विल किल द पर्सन, पर छोटा छोटा स्ट्रेस, केवल कुंभक की प्रक्रिया बोलते हैं हठ योग में 3 घंटे तक सांस लो, कौन रोकेगा? डेविड ब्लेन ने मैक्सिमम रोका है 30 मिनट्स तक, मेरे को जो पता है। 1-2 डाइवर्स हैं जो थोड़ा और गए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें और थोड़ा थोड़ा परसेवरेंस के द्वारा इंक्रीज करें। योग और प्रत्याहार में जितना आपको फोकस बनेगा और इंटरनल पीस मिलेगा, उतना किसी और चीज में नहीं मिलेगा। Thank you so much. Thank you so much, Vivek ji. Next is Babul Balakrishna. If you can quickly ask your question, and we'll try to keep it short. We have just 10 minutes. Amardeep, start interrupting me after 5 minutes. Hello. Okay, sure. Hello. Go ahead, sir. Go ahead. Hello. Thank you, Tapas, for your good energy. Thank you. Hello. हाँ जी, बोलिए, question. My question.
My question is, in this universe, the sexual energy is the most fundamental energy in our body. So how can we transmute that sexual energy to ojas, that more magnetic power in our body? Right. So again, the answer is same like the answer before, and you can watch lots of videos. I don't make that because it's a controversial topic. So I haven't made any videos on semen retention, but there's plenty of videos on semen retention on YouTube, and that is वीर्य. In Hindi we call धातु जो है उसको वीर्य बोलते हैं ना. वीर्य वीर्य से ही शब्द से वीर आया है. वीर means brave ना. तो वीर्य जितना उनकी थ्योरी है कि it should not be wasted ना. It should be, if you, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, it's a little religious concept, but basically the idea is you have to retain the semen in your body and not waste it, not squander it, you know. So if you are in with another individual and having a intimate moment, that is fine, but it should be preserved as much as possible. क्योंकि जो मांस क्या बोलते हैं उसमें, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र, लास्ट में शुक्र, वीर, semen is the last. They say 40 drops of blood make 1 drop of semen. So you have to conserve, and you will see there is suddenly, जो तेज बोलते हैं ना, योगानंद की आप पढ़ेंगे autobiography of a yogi, उनकी फोटो देखें आप, आंखों में क्या तेज. So the kapha will distill into oja, pitta will distill into tej, and vat will distill into prana. That is what Ayurveda teaches us. Oj itself means the glow in the skin, the build, जो भी charismatic magnetic personality कह लीजिए, उसको ओज बोलते हैं. और तेज मीन्स द फायर जो है वो, तो आंखों में तेज दिखता है, शरीर पे ओज दिखता है, त्वचा पे आप ओज देख सकते हो, बालों पे ओज देख सकते हो, आंखों में जो ज्योति दिख रही है ना, वो चीज है, दैट इज स्पार्कली आईज जो है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखिए कितनी उनकी आंखें चमकती हैं, लगता है आपको बिल्कुल देख रही हूँ. तो तेज है वो, और प्राण तो प्राण है. तो इसीलिए इन शॉर्ट, सेक्सुअल एनर्जी, यू आर राइट, इज द मोस्ट is the highest intensity energy, and conservation of that energy is the way to raising your chakras. With your videos, and from the starting days of your videos, are likewise more than 1 year I've been following, and I started your video searching for sattva, rajas and tamas habits that I practice, because I thought removing tamasic tendencies of my life, then I will be more directed toward sattvic and rajasic lifestyles. So later I find out that sattvic, rajasic and tamasic tendencies are dependent on time cycle of the day. From the morning and in the day it becomes rajasic, and it becomes tamasic in evenings. And most of my friends go for alcohol, and so I find that another fact that this lunar chakra, this Pratipada to the 15 days of Purnima and the Amsi, this change, there is also a cycle of this sattvic, rajasic and tamasic tendencies. So my concern is that knowingly and unknowingly, watching movie, watching videos, or watching whatever that makes me inert, or that creates me inertia, I am doing such sort of actions for buddhi vilas or something, acquiring knowledge that has renamed in a new sense, that I'm learning, I'm gaining knowledge, and I find these tendencies as good tendencies. So how could I control watching more, binge watching some good knowledge based videos also, that may be my tamasic tendencies? So how could I relate that sattvic tendencies and rajasic tendencies, that I can be more secured in sattvic lifestyle? Okay. So जिनको हिंदी में पूछना है वो हिंदी में पूछ लें, जिनको इंग्लिश में पूछना है, जिस भाषा में आप पूछेंगे मैं उसमें आंसर दूंगा, इसलिए दोनों भाषाएं बिल्कुल सही हैं. नहीं, हिंदी में भी बता सकते हैं, मतलब मेरे को हाँ नहीं, मैंने बस क्लैरिफाई कर दिया बाकी लोगों के लिए. तो शैलेश भाई, जो आप, आई थिंक यू हैव रिटन दैट क्वेश्चन आल्सो, इफ आई एम करेक्ट. आई थिंक आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू यू द चैनल, बट आई थिंक यू हैड आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन. सो गुना, you have to understand, no guna is good or bad. Sattva is Brahma, Rajas is Vishnu, Tamas is Shiv. Shiv is Tamas. Is Shiv bad? No, we want to be like Shiv. So Tamas, you have to understand the state of inertia, unchanging. When you are attachment, when you are in love with your wife,
When you are in attachment, that is tamas. Is it bad? No. It keeps the family together. So kapha is tamas. If you think about vat, pitta and kapha, vat is sattva, pitta is rajas, and kapha is tamas. Water plus earth, sticky, na? So tamas is sticky. So no, I don't think you have to say that mujhe less. Of course, we talk about that language कि तमासिक चीजें नहीं करो, तमासिक foods नहीं खाओ. सारे वो गीता में जो विवरण है उनका 17 chapter is all about गुण, sattva, rajas and tamas. So he distinguishes everything. But I think as long as you are doing pratyahara, all the 5 things we talked about earlier, and you are doing yoga, start with bhakti yoga, then do some karma yoga. If you are helping your kid, cooking breakfast for him and feeding him, that is karma yoga, as long as you don't have an expectation. Bhai, he should say it is very good and it was very nice. Expectationless service for friends, family, community, society, nation is all nishkam karma. It's karma yoga. So as long as your wish is to do for the betterment of the goal and not get rewards in return, तो वो निष्काम है ना. तो आप सत्व रजस तमस को कर सकते हैं डिस्टिंग्विश अपने जीवन में कि कैसे सत्व बढ़ाएं, लेकिन सबसे आसान तरीका है योग का मार्ग, जो भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग है, और इधर प्रत्याहार के जो मार्ग 5 बताए हैं जो पहले बात की. I mean to say, how can I control this desire, repulsive tendencies? That I felt like that when I started to watch your videos, I used to watch it a long period of time, but after some period of time, I followed your every practice that you said, chanting and intermittent fasting, everything was good. But after some period of time, I become repulsive that I could not do that anything, and I could not watch even your videos also. That my mind was always making some excuse to not to watch that. Or again, I indulge in my same course of So negativity. first thing, I got your point. In interest of time, I got your point. So you don't have to blame yourself. That is the first thing you have to do. You have to understand that if you don't feel like watching videos, or you are having some other desires that are seeking you, that is because of the emotional reaction. That's a sound wave that you sent, and the echo is coming back. So cravings, expectations, and emotions. There's a video that will be coming up soon. Cravings, expectations, emotions. ये तीनों चीजें आपको वापस आ रही हैं. They are coming back to you. They are recall. You threw out something in the universe. Either you acted in a certain way or you engaged in that act. So that is being returned to you. It's a karma bandhan. So you don't have to blame yourself. You have to be a witnesser. Watch ki haan theek hai, I am having this desire again, but this is not me. जैसे वो वीडियो में बोलता है ना कि the way you feel is none of your business. That concept. So in short, don't try to go for moksha right away. Play it year by year, one page at a time. Turn the book one page at a time. So why don't you start with the easiest thing? Can you commit to more bhakti, like listening to Hanuman Chalisa, or can you do service in the community? जो आपके आजू बाजू जो भी होगा, किसी को फीड कर दिया, भंडारा में चले गए, कोई भी आपने सर्विस करी कम्युनिटी में, or you can do dhyan in the morning, Brahma Muhurat. Are you able to commit to one of these 3 for 5 minutes a day? Yeah. For Brahma Muhurta, we started to. Yes. So pick one. Most people have easiness with Bhakti Yoga because Bhakti is the simplest. गाने मजा आते हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते ही हैं, तो वही वाले लगा लो, बस भगवान का अपने इमेज मन में डालना है. तो स्लो प्रोग्रेस है यार शैलेश. इट वोंट हैपन. मेरे को 5 साल हो गए अभी, थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, तो बहुत टाइम है. बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वारमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ. बहुत जन्मों के बाद आपको समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है. ऐसा महात्मा दुर्लभ है मिलना. तो लाइफ लॉन्ग लेसन्स चल रहे हैं ना यार. अभी तो आपका 12 o'clock ही हुआ है टॉडलर को, 6 नहीं बजे ना शाम के, तब ना जाएगा मम्मी के पास. तो इसीलिए हताश नहीं होना है आपको. यू जस्ट हैव टू वर्क. उसी तरह प्रत्याहार. आप पूछो कि 5 में से आप कौन सा काम कर सकते हो. क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो? एक दिन 1 meal a day खा सकते हो एकादशी का फास्ट रख के? ऐसा महीने में एक दिन कर लो. या फिर आप अल्कलाइन वाटर पियो सवेरे, या फिर आप कुंभक कर लो. कोई भी एक चूज कर लें आप, जो आपको सूट करता है बॉडी टाइप्स में, फिर उस पर वर्क करें. आपको बेनिफिट ग्रेजुअली होगा. So I do this yoga mudra, like the प्राण मुद्रा, फिर ज्ञान मुद्रा. तो आप कितना उनमें, अभी आप जैसे प्रत्याहार के बारे में काफी बात कर रहे हैं, so what do you think about the yoga mudras?
कितना बेनिफिशियल है? So Neetaji, there is a video we have made about आसन बंद मुद्रा, उसके बारे में सारे डिटेल्स में है. I'll give you a one line answer to that. मुद्रा में what you are doing, जो 5 उंगलियां है ना हमारी, वही डिनोट कर रही है पंच महाभूत को. हाँ हाँ. तो वो आपको पता है फायर, अर्थ, एयर, वाटर जो है वो तो आपने जैसे विष्णु मुद्रा लगा ली, तो आपने मोड़ लिया है अपना पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं बात, और आप बाकी एनर्जी ले रहे हैं. आप चाह रहे हो कि मेरे को भेजो फायर, वाटर और एयर और ईथर मत भेजो. तो बेसिकली मुद्रा इज चैनलिंग द कॉस्मिक एनर्जी या प्राणा सेलेक्टिवली बेस्ड ऑन कैसे उंगलियों को घुमाते हैं आप, योनि मुद्रा लगा रहे हैं, ज्ञान, विष्णु कौन सी लगा रहे हैं, उस हिसाब से आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं महाभूत को. बट द आइडिया ऑफ मुद्रा इज, मुद्रा में आप एनर्जी सक कर रहे हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या प्राणा से. और बंद में जो बंद होते हैं ना 3, जालंधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद जो होते हैं, उसमें आप एनर्जी को लॉक कर रहे हैं अपने नाड़ियों में. क्योंकि देखिए एक तरह से आपने चार्ज कर दिया फोन, तो ये जो चार्ज कर रहे हैं ये मुद्रा है, लेकिन बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है ना थोड़ी देर बाद, डिसिपेट हो जाती है. अब जैसे आप इंद्रिया का इंद्रिया थेशु के साथ कॉन्टैक्ट होगा तो आपकी एनर्जी जा रही है, जैसे भी जा रही है दिन भर में, ओज कम हो रहा है. तो वो चीज को लॉक करने के लिए शरीर में, ताकि एनर्जी प्राणा डज नॉट डिसिपेट, वो बंद हो गई. तो बंद लॉक करता है और प्राणा उसको सक करता है यूनिवर्स से, अपने अंदर ट्रांसमिट करता है एनर्जी. जो मुद्रास हैं, योग मुद्रा जो है, जो भी योनि योग मुद्रास हैं सारी, मैं तो बहुत योनि मुद्रा और ध्यान आसन और कुंभक को तीनों को साथ में करता हूँ. उसका नाम है कुंभक क्रिया, मैंने रखा है, एक वीडियो देख लें कुंभक क्रिया करके. तो उसमें क्योंकि हम लोग के पास टाइम रहता नहीं है कि 2 घंटे तक करें, तो मैं ये 5-10 मिनट ध्यान में करता हूँ. जब कुंभक करता हूँ तो योनि मुद्रा मेरे लिए बहुत काम करती है, क्योंकि मुद्रा बेसिकली एनर्जी बढ़ा रही है. तो अगर आप थोड़ा डिस्पॉन्डेंट हैं, डिप्रेस्ड हैं, जैसे वो भाई साहब बता रहे थे, कोई बता रहे थे भी कि कोई चीज में मन नहीं लगता है, अगर आपको थोड़ा पर नेगेटिव मन नहीं लगता है, मन मुझे भी बहुत सारी चीजों में नहीं लगता है, मुझे मजा आता है कि मेरा मन नहीं लगता उन चीजों में, पर आप दुखी है कि भाई मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, तो फिर वो एनर्जी वाइब्रेंसी, जैसे बच्चा चारों तरफ भागता रहता है ना, वैसी एनर्जी, क्योंकि प्राणिक एनर्जी बहुत हाई है बच्चों की, तो वो आप में फिर से एक बच्चों जैसी इनोसेंस आ जाए, एनर्जी आ जाए, वो काम मुद्रा का है. लेकिन मुद्रा लगा के डिसिपेट कर सकती है, इसीलिए बंद उसके ऊपर लगाते हैं. कुंभक क्रिया में कोई जलंधर बंद लगा के मैंने दिखाया है. यही अंतर है. ओके थैंक. एक क्विक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे वर्कशॉप्स काफी करते हैं मंडालास के ऊपर, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट चक्रा मंडालास जो होते हैं, हाउ बेनिफिशियल आर दे फॉर फोकसिंग? मुझे चक्र मंडाला के बारे में कुछ पता नहीं है. अच्छा, और मंडाला इन जनरल पेंटिंग जो बुद्धिस्ट सेंट्स करते हैं, मॉन्क्स करते हैं, do you think they are helpful in focusing, in concentration? मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस बारे में मैम, I cannot answer that. Thank you, Nandita ma'am. So we'll take 2 more questions, one from Samarth and one from Krishna. Hi Tapas, thank you. सर मेरा क्वेश्चन एपिलेप्सी के बारे में, सीजर्स के बारे में है. तो मुझे खुद है, मैं आपसे डॉक्टर की तरह नहीं पूछ रहा हूँ. तो सर जैसे एलोपैथी में होता है कि डॉक्टर्स के पास कोई आंसर नहीं होता क्यों है, तो इट्स फाइन. तो सर अपने आप को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला है दैट लाइक मेरा आई एम अ वेरी वाता पर्सनालिटी, चलो समझ आ रहा है. एंड सर एंड में मतलब पता चला कि जो थर्ड आई चक्र है, डाउन चक्र है, वो शायद बहुत वीक है, जो ईडा है मेरी हम बहुत वीक रहती है. क्या आप मुझे प्लीज कुछ बता सकते हैं अबाउट एपिलेप्सी, बिकॉज मेडिसिन से भी कुछ नहीं होता है. मैंने डाइट भी ट्राई किया है, मेडिटेशन भी ट्राई किया है, अब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ एंड आई होप इट कैन डू समथिंग. कुछ आप हेल्थ से रिलेटेड बता सकते हैं जिसमें कंडीशंस का कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है. थैंक यू. आपने बहुत सारी चीजें पूछ दी, इसलिए मुझे उसका सबका तो आंसर नहीं पता, और खासकर मैं आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता ना. एज अ डॉक्टर आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू मेडिकल एडवाइस, सो यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर अबाउट एपिलेप्सी ट्रीटमेंट. लेकिन जो आपने वात की बात करी ना कि मेरा वात बढ़ा हुआ है, ईडा बढ़ा हुआ है, उसको आपको कोरिलेट करना है एपिलेप्सी से, आई लीव इट अप टू यू. आई डोंट नो इफ देयर इज अ कोरिलेशन और नॉट. पर वात अगर बढ़ा हुआ है तो उसके जो टेक्निक्स हैं वो उसमें जरूर देखें. कुंभक क्रिया, सॉरी, डायग्नोज योर दोषा एंड देन देयर इज अ डाइट फॉर द दोषा. दो वीडियोस हैं. पर बेसिकली अगर वात बढ़ा है मतलब शरीर में ईथर और एयर बढ़ा हुआ है, तो आपको उसको कम करने के लिए, क्योंकि वात का नेचर होता है ठंडा, सारा और रूखा जो बोलते हैं, तो शीत उसमें है, और एक सारा और काला बोलते हैं, मूवमेंट बहुत है, और रूखा रुक्ष है. तो इसीलिए आपको बॉडी को गर्म
और गीला रखना है। तो आप सोचे कैसे होता है गर्म और गीला? या तो आप स्टीम शावर करें, सोना ब्लैंकेट लें, या फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लें जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना निकल जाए। कैसे भी शरीर से पसीना निकालना है वात वाले इंसान को, कैसे भी कर सके। दूसरा तरीका है, वात अगर बढ़ा हुआ है तो प्रत्याहार करें। प्रत्याहार मतलब त्रिदोष कम होता है। अगर आपने फास्टिंग किया ना तो तीनों दोष कम होंगे। तो इसीलिए वात वालों को पसीना निकालना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, और फास्टिंग जितना कर सके करें। ज्यादा कच्ची चीजें नहीं खानी है। हरी सब्जी जो है वो इनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इनका डाइजेशन वीक होता है बात वाले लोगों का। तो उनको ज्यादा तरल वाली चीजें खिलाएं, ज्यादा घी तेल वाली, खासकर गाय का घी हो तो वो नाश्ते की पद्धति है कि नाक में घी डाल के रात को सोया करें, एक थोड़ा सा नॉस्ट्रिल में इनहेल करें, दोनों लेफ्ट राइट में। और दूसरा है कि तिल का तेल गर्म मानते हैं तो उसको लगाकर धूप में बैठा करें। कैसे भी शरीर में गर्मी लानी है आपको, और कैसे भी शरीर से पसीना निकालना है, ये वात का ट्रीटमेंट है। कच्ची चीजें कम से कम खाएं, ज्यादा तेल खाएं, मसाला नहीं खाएं, पित्त बढ़ेगा, पर तेल तरलता चाहिए ताकि हवा शरीर से जाती जाए। और ऑफ कोर्स आप जितना कुंभक करेंगे, जितने प्रत्याहार के वो माध्यम जो पांचों बताए हैं वो करेंगे, उससे भी बात की कमी होगी। ईड़ा के लिए भी वही रूल है कि अपना देख लें क्या आपको करना है। सूर्य भेदी, सूर्य को बढ़ाना अगर आपका ईड़ा बढ़ा हुआ है तो वो दोनों चैनल्स देख लें आप, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वाले, और डायग्नोज योर दोषा, डाइट फॉर दोषा। Thank you, Samarth. Krishna, last one for you. Hello, doctor. Can you hear me? Go ahead, Krishna ji. Yeah, I can hear you. So more on a personal level, medical question kind of a thing. My son has eczema since he was 6 months old, and now he's 15 years. And though it has improved, his condition has improved, it hasn't gotten cured. So the question I wanted to know from you, not sure what kind of a dosha it falls in. Because he's not able to sleep, he'll keep scratching. It's painful as a parent, How to old is see the kid? that. He's 15 now. And started when he was 5 years old? When he was 6 months old. 6 months old. Mostly on the knees and the flexor of elbows? Used to be throughout the body. Thankfully now it's more on the, as the joints and everything. Right. So this is classic, जो medicine में कहते हैं इसको, starts at young age, 6 months, 6 years, जो भी बोल रहे हैं, और as they grow older, it will get better. Eczema is the common term. Most commonly, I cannot diagnose again on the phone, but most likely atopic, exactly. It's atopic dermatitis. Right. So atopic dermatitis is a manifestation of increased vata, because dryness will precipitate worsening of the vat disorders. तो अगर skin dry है उनकी तो वो ज़्यादा होगी. लेकिन there's a component of pitta, because unless you have dermatitis, itis is inflammation. Inflammation is pitta. What is the natural state of kids? Kids का natural state है kapha. Kapha is good for the inflammation, suppresses the inflammation, good for the immunity. तो अगर उनका कफ, इनमें प्रॉब्लम है, इनका वात बढ़ा है और पित्त बढ़ा है, जबकि इनको कफ होनी चाहिए थोड़ी ज्यादा। तो इसीलिए आपको ऑफ कोर्स एलर्जीज देखनी होंगी, क्योंकि हर एक ऑयल सूट नहीं करेगा, एंड यू माइट हैव टू trial and error, see what is. Coconut has I've tried everything. Coconut is what works for him, and I'm trying to stick to that. But right, so coconut alleviates pitta, and til will alleviate, ghee and til will alleviate the vat. So you can try coconut if that's working for him. More important thing is that since there is a component of pitta, without pitta you cannot have atopic dermatitis, itis itself means inflammation. So the pro-inflammatory state has to be suppressed. So he should avoid any processed foods, baked foods, bakery के जितने items होते हैं, refrigerated, cold refrigerated, जो टमाटर की सारी चीजें ये सब कुछ. हाँ जी. No, he's at the age where he's 15, Right, hard, see, they kind of rebel, right? If you say right, something. but his flare-ups will be worse in the winters, and they will be worse when he's taking these refrigerated, stale foods, or shell, जो ये क्या बोलते हैं, shelf पे जो bars, all the processed. I'll further ask. I'm just normal. What would you be doing? Okay, so the actual question is, what you be doing differently tomorrow if you attain moksha today? That is the question. What
What There's nothing to be told. difference? Name Parthaste Kartavayam Tishu Lokeshu Kinchana. When you have done everything, then you just wait for the karma bandhan to unfold, and then you just leave the world. There's nothing for you to do. But that point hasn't come. That's why I'm doing what I'm doing. Because those guys know, like the Siddhas, not only they have intuition, they will know a lot of things. Like you might have heard, Ramakrishna की जब death हो रही थी, तो उनको 6 महीने पहले बोलते हैं, उनको समझ में आता है कि they are going to leave the world. और उन्होंने 3 दिन पहले अपनी बीवी को बोल दिया था खाना बनाना बंद कर दो, मुझे नहीं खाना आज के बाद. So that is when you are enlightened or close to enlightenment, the last thing that rises is intuition. Intuition is the ability to understand what's going to unfold. Not mind reading. Mind reading is a Vishuddha quality. You can, what you are thinking, lot of gurus Neem Karoli Baba could read the mind of Krishnadas. There's lots of videos. If you watch Ramdas, Krishnadas, Neem Karoli, he used to, because he's a Siddha. He has all these higher powers. I cannot read my own thoughts, forget the thoughts of another individual. And intuition is a higher level. Intuition is, you know what's going to happen tomorrow. It is not reading someone's thoughts. So Vishuddha and Agya, those are the highest levels that will rise, and those guys will keep quiet, because the more you disclose the siddhis, the quicker you lose them and you will fall back to Muladhara. So most people will not talk about it, even if they have it, you know, because uska prachar karne se uska kshay hota hai, to aap uska vinash nahi karna chahte. I've been seeing your videos and got inspired. My question is, I heard somewhere that women, if they want spiritually inclined, they cannot do that, even if they do meditation and all, because of the natural periodic cycles and all. But men, if he wants, he can do, he can raise his kundali and he get enlightenment. So women cannot do few things like Om chanting and all, which is not good for them. So I want clarity regarding this. Okay, I don't agree with that notion, because one of my favorite gurus or person I look forward to is Ma Anandmayi, and there's no one more enlightened than Ma Anandmayi, is my personal opinion. So I don't know why, of course, most of the people who have composed all these scriptures are males, but women enjoyed a very strong reputation and respect in the Devi, in the ancient Indian history. So I don't think, just because you are if you think about biologically, men are chitta and women are prana. Prana is Shakti, na? Shakti is always, if you talk about energy, getting things done, women will manifest way more than men. Yeah, I got this. I mean, I remembered Ma Anandmayi, but she's on spiritual path and she's not married. So what about the married woman? No, And Ma who Anandmayi is was having married children? actually. Bhola was her husband, but there is other stories Okay. that they did not have intimate things, because she's above that, no? So one of the yoga teacher told that Om meditation cannot be done by women too long, and it can give some harmful effects. I don't know, actually. I was doing that. I don't know if there is a contraindication. I would not say there's a contraindication. Okay. And one more thing is, because no, I feel like, okay, by doing Om meditation, I did not find any adverse effects. So I was continuing. And one more thing is, after doing dharana and doing this puja and all, once we reach that stage of dhyana, meditation, can we continue to do the same chanting and all, or can we leave it? Like, some people say that meditation is all higher. After you reach that, you need not do regular puja and chanting and all. But I'm continuing it because of the family and all, because I'm used to it. But so I want that clarity regarding that. Thank you. Yeah, so I would not try to create a textbook paradigm for what I should do, dharana, dhyana, samadhi. I would just let my intuition tell me. When you do dhyana, all my thoughts come to me, most of them actually come to me during dhyana. I don't know what thoughts will be generated, you know. I just close my eyes and things happen. So you have to just leave it to the higher cosmic consciousness that you are connecting with in Brahma Muhurat.
So always close your eyes, do a little bit of kumbhak kriya, and then just sit still. Ideas will come to you eventually, not first day, of course, it will take some time, but you will know the answer if I should do more dhyana or I should do more dharana, bij mantra recitation. All these are different tools to realize the same God. So I cannot say that you should stop doing the yam niyam, asan, pranayam, just do the pratyahar, dharana, dhyana, samadhi. No, you have to mix it all. See what you feel like. Some days I feel like listening to Hanuman Chalisa more. Some days I don't listen to it at all. I'm just doing kumbhak or just seeing my patients. So it all depends on what the higher cosmic divine intelligence is telling you. You have to just open your radio station. You have to just tune it and it will tell you what to do. So do what you feel like. This is one of the places where you have to let your intuition drive you, because it's the sattva realm we are talking about, the limbs of Ashtanga Yoga. If you like listening to more Bhakti Yoga songs, listen to it all day. I have told so many times, leave the Hanuman Chalisa on all day, low volume, and do your home household works. If you are in the office, just leave it on and just let it play in loop, repetitive mode. So that will rewire the neuronal circuits and you start thinking differently. Your compassion center in Anahata is activated. That marks the change from the lower three chakras, the Muladhara, Swadhisthana, Manipura, into the Anahata realm, the Anahata Vishuddha Agya. So that compassion is the first sign that you are making real progress in your spiritual path. Of course, there is, before that, there is the ambition center. But I will not dictate कि हाँ ये पैराडाइम गुरुजी ने बताया मेरे को तो ये इस पे चलना है, मेरे को नहीं. आपको अपने लिए आपका path different है from my path, because based on our samskaras, the things we are attracted to will be different. Everybody for joining us today, and we'll see you at the next session, hopefully in 2 to 3 weeks from now.